क्या सुनना जरूरी है या नहीं? आपका आंसर होगा हाँ है। क्यों है? क्योंकि सुनने से ही हर काम होता है। आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, आप गाड़ी का हॉर्न सुन रहे हो, या ए से लेकर जेड तक जितने काम हैं उनमें से 99% में सुनना जरूरी है। अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो वो भी सुनने की वजह से देख रहे हैं, वरना अगर आप इसको म्यूट कर ले तो आपको मेरी बातें समझ नहीं आएंगी। हाँ, कैप्शंस लगा लो तो अलग बात है, लेकिन वैसे तो नहीं आएंगी। और लिसनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, और हम इसीलिए आज लेके आए हैं कुछ लिसनिंग टिप्स जिससे आपकी इंग्लिश लिसनिंग इंप्रूव होगी। ठीक है, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको ए से लेकर जेड तक आपको सब समझ में आ जाएगा कि शुरू से आपको क्या करना है, क्या क्या टिप्स हम देने वाले हैं कि आप स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक इंग्लिश सुनने की प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप किसी भी नेटिव इंग्लिश स्पीकर से आप फ्रैंकली बात कर पाए इंग्लिश में। इट्स रियली इजी। So, hello everyone, welcome to Saptrishi School of Skill Development. I am Aniket Singh, author and educationist, and today we are beginning with listening tips. हम listening के अलावा remembering tips, writing tips, reading tips, ये सारे tips के साथ आएंगे, और spoken English classes तो हमारी चलती रहेगी. So let's begin. The first thing, listening tips. There are 15 expert tips. 15 expert tips, 5 key sections. There are 5 key sections, 15 tips, and 100% practical. So we have faced this, and that's why we are communicating it with you. Let's begin with our section 1. What is the section 1? Section 1 is mindset and preparation. Mindset and preparation. You need to set your mind. Don't need to like घबराना नहीं है. Focus. मैं कर सकता हूँ. Confidence should be there. Okay? Don't demotivate yourself. Let's begin with the section 1. Section 1, adopt the right mindset before listening. Adopt the right mindset. Your mindset should be right before listening to anyone in English. First thing, you don't need to understand every word. Don't need to understand every word. हमने पहले बता चुका है, आपको एक वर्ड समझने की कोई जरूरत नहीं है. Focus on overall meaning. Focus on the overall meaning of the sentence. If I talk a whole sentence, तो आपको हर एक वर्ड पकड़ने की जरूरत नहीं है. अगर आप मीनिंग पे भी फोकस कर ले, so you can understand it. Native speakers miss words too. Native speakers miss some words, the main words, some of them too. But that's completely normal. It's completely normal if you miss 1-2 words in a sentence. You just need to focus on the idea, main idea of the sentence. Go in relaxed and curious. Go in relaxed and curious, not anxious and stressed. So you don't need to go inside anxious and stressed that now how will I listen to the native English speaker. You just need to go curious and excited, relaxed. You need to relax, curious about learning something. Okay, anxiety blocks comprehension. Calm breathing improves focus. So whenever you're going inside, just breathe in, breathe out, and it's completely positive. Positive self-talk works. Tell yourself, I will understand enough. I will understand enough. I will understand enough. If you will say this to yourself, अगर आप ये हर रोज अपने से बोलते हैं, then your confidence, your listening practice will improve. You will improve in listening English. Okay, so first thing, don't be scared. Second, focus on chunks, not individual words. Our first sentence of mindset was focus on chunks. Focus on sentences, not words. Words पे focus नहीं करना है, chunks पे focus करना है. Sentences, phrases, clauses पे focus करना है. English is spoken in phrases and chunks. English is spoken in phrases and chunks, not individual words, not word by word. If I say Radha was leaving for the bus, तो आपको chunk समझना है इसमें. आपको ये नहीं समझना कि राधा कौन है, was क्या है, leaving क्या है, for क्या है, the क्या है, bus क्या है, ये समझने की जरूरत नहीं. Radha was leaving for the bus means राधा बस के लिए जा रही थी. खत्म. You don't need to understand every single word. You need to understand phrases. Phrases समझना है. Example, gonna give it a shot. Gonna give it a shot. That's much. Sounds very different when spoken naturally. Gonna give it a shot. You need to just focus on the chunks. Gonna समझने की जरूरत नहीं है. Give का समझने की जरूरत नहीं. It a shot की जरूरत नहीं है. Gonna means going to give a shot. बस इतना समझना है. Train your ear to hear groups of words together. Train your ear. Listen to groups of words. Listen to phrases spoken by native speakers. This is called chunking. This is called
चंकिंग, चंक की तरह पढ़ना. Fluent listeners process language in chunks. In chunks याद रखना है क्योंकि phrases chunks में ही you need to process the words, the sentence. English, not individual syllables. एक एक syllable पढ़ने की जरूरत नहीं आपको. आपको बस chunks पे ध्यान देना है. आपको किस पे ध्यान देना है? Phrases पे ध्यान देना है. आपको word जाना नहीं है. यही हमारा second listening tip है. Practice identifying phrases like by the way, kind of, you know. तो जो phrases basic use है, मतलब almost every sentence में use होते हैं, you need to practice them. You need to practice listening to them. Okay. Third one, listening for stressed words. Listen for stressed words. Stressed words. Speakers stress the most important words in every sentence. Very easy. If you are listening to any native speaker, the first thing you realize that they stress on the main words, the most important words in every sentence. Let's check what are the most important. Stressed words are noun, verbs, adjectives, adverbs. So nouns, verbs, adjectives, adverbs. These are the words which are stressed on by the native English speakers. But others are eaten. They carry the meaning. The nouns, the verbs, the adjectives, the adverbs carry the main meaning of the sentence. Unstressed words, the, a, of, to are often reduced or swallowed. Swallowed means that they mostly don't speak it out. So the, law, to, out, into, like this. Example, I went to the store to buy some milk. I went to the store to buy some milk. Okay, so went, store, buy, milk. These were stressed. Okay, so native speakers stress on the main words. Practice. Listen and identify which words are emphasized in each sentence. Which words are emphasized in each sentence means which words are stressed on, which words are important in sentence. You need to go and practice. Okay, you need to listen to native English speakers. Section 1 खत्म. Section 1 में खत्म कर लिया है. 3 टिप्स हमने दे दिए हैं. Now section 2. Section 2 क्या है? Section 2 है understanding natural English. You need to understand natural English. अब natural English ये क्या होता है? Let's find out. Get comfortable with connected speech. Corrected speech. What confuses students? Words seem to blur or disappear. Words seem to blur or disappear. I am going to a school. Disappeared. Blurred. Going to sounds like gonna. Now you are familiar with going to, but now the contractions are like gonna. So you won't understand it. समझ में नहीं आता. Want to sounds like wanna. Did you sounds like did you. So these get blurred or get disappeared. So students get confused in this. Now what to do? Patterns to master. Linking turn off. Link it. Dropping next to next door. Next door. Drop some words, link some words, turn off. Dropping next door. Blending sounds across words, blending sounds across the words. This is natural, not lazy speech. So you need to practice these. These are not lazy speeches that you are getting lazy and adding these two words not to speak more English, or you can just drop. These are lazy verbs. बहुत आसान लग रहा है, लेकिन these are natural things done by native English speakers. Second, listen to wide variety of accents. हमें तो नहीं पढ़ना सारे, हमें अमेरिकन और ब्रिटिश जानना है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा क्या जानेंगे. बट इफ़ यू लिसन टू द वाइड वेराइटी ऑफ एक्सेंट्स, देन उससे प्रैक्टिस होती है आपकी. प्रैक्टिस कैसे? अगर आप अलग अलग एक्सेंट सुनेंगे तो उनके अलग अलग आपके वर्ड प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग थीम, अलग अलग रिदम, अलग अलग टोन समझ में आएंगे. ठीक है, इसलिए यू नीड टू लिसन टू वाइड वेराइटी ऑफ लैंग्वेज, वाइड वेराइटी ऑफ एक्सेंट्स. Let's find out. English is spoken in many accents: American, British, Australian, Indian, and more. These are the 4 main. Okay, so English is spoken in American, British, Australian, American, Brazilian, and much more. These are some accents. Expose yourself to different accents to you, so you are never caught off guard. Caught off guard? Main phrase. Caught off guard. अब कमेंट करके आप बताइएगा कि caught off guard क्या होता है. BBC पॉडकास्ट ब्रिटिश, CNN अमेरिकन, ABC ऑस्ट्रेलियन, ये सारे न्यूज चैनल्स है. यू कैन वॉच देम सो यू कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट एक्सेंट्स. ओके, लिसन टू इंटरनेशनल पॉडकास्ट एंड इंटरव्यू विद डाइवर्स गेस्ट्स.
listen to international podcasts, international interviews, international news with diverse guests. Means you need to listen with many people and visiting. Over time, even the most unfamiliar accents become easier to understand. Most unfamiliar accents also become easy to understand. You can easily understand these accents. Over time, आपको हर रोज देना पड़ेगा, daily. Now, section 3, the last section. Let's move on. Activity listening techniques. Now we are telling you how you can listening. What are the techniques to listen? Use active listening techniques. Use active listening techniques. First thing, passive listening. Passive listening. Background English audio has very limited benefits. Passive listening has very limited benefits, so you really don't need to listen passive. Background English audio. सुनना नहीं है. Predict what the speaker might say next. Predict what the speaker might say next. Stay one step ahead. Okay? Stay one step ahead. तो आपको एक स्टेप ahead रहना है स्पीकर से. अगर स्पीकर बोलने वाला है कि राम was going to the market, तो आपको सोच लेना है कि कुछ खरीदने गया होगा. खरीदने गया होगा ना, खाने तो नहीं गया होगा. खाने भी जा सकता है, राम का क्या भरोसा मोटा हो. ठीक है, लेकिन वो खरीदने गया है, तो आपको एक स्टेप अहेड रहेगा कि बाई तो वर्ड आना ही चाहिए. ठीक है, अगर खाने भी जाना है तो बाई करके ही खाएगा, तो बाई वर्ड तो होगा ही नेक्स्ट सेंटेंस में. ऐसी प्रेडिक्शन करनी है आपको. ठीक है, तो आप अगर स्पीकर से एक कदम आगे रहेंगे तो जब वो बोलेगा तो आपको वो इंग्लिश सेंटेंस ज्यादा बेटर समझ में आएगी. ठीक, इजी. आस्क योरसेल्फ कंटिन्यूअसली, क्या पूछना है? व्हाट इज द मेन पॉइंट हियर? व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस कन्वर्सेशन? व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस सेंटेंस? जो मुझे समझ नहीं आ रहा, बस you will get your answer. Mentally summarize every 30 seconds to confirm your understanding. So you need to summarize every 30 seconds. अगर 30 सेकंड ये बात चल रही है, फिर 30 ये, फिर 30 ये, फिर 30 ये, तो आपको उसको प्रैक्टिस का आपको समराइज करना है कि क्या चल रहा है, ताकि आपको समझ में आ सके कि मैं कहाँ हूँ. अगर मैं पीछे छूट गया हूँ तो every 30 सेकंड I will get a upgrade. ठीक है, every 30 सेकंड I will get a new update कि ये चल रहा है, यहाँ से यहाँ बदल गया टॉपिक. ठीक है, ऐसे आपको समझना है कन्वर्सेशंस को. नोटिस एग्जैक्टली व्हेन यू लूज द थ्रेड. यू लूज द थ्रेड. अब लूज द थ्रेड का भी मतलब आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस होगी, लिसनिंग प्रैक्टिस. सो नोटिस एग्जैक्टली व्हेन यू लूज द थ्रेड. अब इस सेंटेंस में अगर आपको इस वर्ड, इस फ्रेज को कमेंट करना है, तो आपको इसकी मेन आइडिया को पकड़ना पड़ेगा. मेन आइडिया क्या है इस सेंटेंस का? कमेंट डाउन बिलो एंड विल पिन द बेस्ट कमेंट. आइडेंटिफाई व्हाई एंड रिफोकस. Exactly when you lose the thread. Lose the thread मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन करना है. क्योंकि lose the thread का मतलब होता है कि कब आप पीछे छूट गए. कन्वर्सेशन हो रही है और आप पीछे छूट गए, तो आइडेंटिफाई व्हाई एंड रिफोकस. तो आपको बस बताना है कि आप पीछे क्यों छूटे. आपको अपने आप ने पूछना है क्यों, व्हाई, कि मैं पीछे क्यों छूट गया इस कन्वर्सेशन में, और आपको उसी पे रिफोकस करना है. ओके, डोंट स्टॉप व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड. डोंट स्टॉप. डोंट स्टॉप का मतलब आप तो शांति से बैठ के सुन रहे थे, रुकना किस चीज के? यू डोंट स्टॉप फोकसिंग. आपको वापस डोंट मतलब स्टॉप नहीं करना अंडरस्टैंड करने से. यू नीड टू रिफोकस, फिर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है. मेनी लर्नर्स फ्रीज व्हेन दे हिट द अननोन वर्ड्स. मेनी लर्नर्स फ्रीज व्हेन दे हिट द अननोन वर्ड्स. अब आपको बहुत सारे वर्ड्स नहीं पता होंगे. इंग्लिश इज अ वास्ट सब्जेक्ट, और इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जो ऑलमोस्ट हर इंसान को नहीं पता. ठीक है, बट आपको रुकना नहीं है, आपको मेन आइडिया पकड़ना है. रेजिस्ट दिस अर्ज. रेजिस्ट दिस अर्ज मतलब आपको इसको रोक देना है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना. मेनी लर्नर्स फ्रीज व्हेन दे हिट द अननोन वर्ड्स. तो आपको रुकना नहीं है, आपको बस सुनते रहना है, अंडरस्टैंड करना है. नेक्स्ट सेंटेंस विल ऑफन क्लैरिफाई द मीनिंग थ्रू कंटेक्स्ट. नेक्स्ट सेंटेंस विल ऑफन क्लैरिफाई द मीनिंग थ्रू कंटेक्स्ट. तो आपको कंटेक्स्ट पे फोकस करना है, आपको फ्रेजेस पे फोकस करना है, आपको चंक्स पे फोकस करना है rather than words, and do not stop on listening. क्योंकि अगर रुक गए तो आप इतना बड़ा पैराग्राफ छोड़ दोगे. इतना बड़ा पैराग्राफ छोड़ने के बाद आप स्पीकर से दूर हो जाओगे कन्वर्सेशन में. ठीक है, आपको फिर पूछना पड़ेगा क्या चल रहा है. रियल कन्वर्सेशन डोंट पॉज फॉर यू, दे डोंट पॉज फॉर यू. ट्रेन योरसेल्फ टू कीप गोइंग. सो आपके लिए कोई रुकेगा नहीं. ऐड थोड़ी है या यूट्यूब वीडियो थोड़ी है कि आप यहाँ तक समझ नहीं आ रहा तो रिवॉच कर लो, या यहाँ तक समझ नहीं आ रहा तो यहाँ रोक के फिर समझने का प्रयास करो, फिर वहाँ से स्टार्ट करके फिर नहीं. आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि कन्वर्सेशंस आपके लिए रुकेंगे नहीं. ठीक है, अगर वो यूट्यूब पे है तो आप रुकोगे, सोचोगे, फिर प्ले करोगे. ऐसा करना नहीं है. पूरा कन्वर्सेशन एक बार में देखना. जितना समझ में आ रहा है उतना समझ में आ रहा है, लेकिन आपको पूरा कन्वर्सेशन एक बार में देखना है. ओके, ट्रेन योरसेल्फ टू कीप गोइंग. Keep going. Piece together meaning from the words. Meaning from the words.
You did catch. What you did catch? Practice listening. Listen to 2 minutes clips. So listen to 2 minute clips without pausing. Without pausing. What did you understand? Comment. जो भी आप देख रहे हो एक बार कमेंट कर देना. Now engage with content emotionally. Engage with the content emotionally. You remember what you feel? Emotional engagement boosts retention. So you need to feel the conversation कि क्या चल रहा है. You need to just imagine the things. कि अगर रोने की बात चल रही है तो आपको भी दर्द होना चाहिए, हंसने की बात चल रही है तो आपको भी मजा आना चाहिए. ओके. इमोशनल एंगेजमेंट बूस्ट रिटेंशन. लिसन टू कंटेंट you genuinely enjoy. Listen to content you genuinely enjoy, जो आपको मजा आता है सुनने में. कॉमेडी, स्टोरी, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, ये सारे कंटेंट आप देखिए, लेकिन इंग्लिश. रियल इंटरेस्ट कीप्स योर ब्रेन स्विच्ड एंड ऑब्जर्व्स लैंग्वेज नेचुरली. ट्राई इंग्लिश कॉमेडी शोज, ट्रू क्राइम पॉडकास्ट, स्पोर्ट्स कमेंट्री. Make it fun. Daily listening practice should not feel like homework. Homework की तरह नहीं लेना है. You need to enjoy listening. Okay. Now section 4. इसके बाद last section है. What is the section 4? Tools and resources. Tools and resources. पढ़ते हैं आगे, देखते क्या है tools and resources. Use suitable strategy. Subtitles strategically. Sorry. Subtitles strategically. Avoid this approach. क्या अप्रोच अवॉइड करनी है? वॉचिंग विद नेटिव लैंग्वेज सबटाइटल्स. नेटिव लैंग्वेज सबटाइटल्स से नहीं देखना. नेटिव लैंग्वेज सबटाइटल्स मतलब अब ब्राजीलियन चैनल ब्राजील थोड़ी देखोगे. अगर अमेरिकन एक्सेंट ही चल रहा है तो उसको भी देखना थोड़ा. योर ब्रेन शिफ्ट्स टू रीडिंग नॉट लिसनिंग. तो आपको लिसन करना है. क्या करना है? लिसनिंग करनी है. हम रीडिंग की प्रैक्टिस कर नहीं रहे तो आपको सबटाइटल्स ऑफ करके देखना है. बिल्कुल बिल्कुल फोकस के साथ देखना है. लिसनिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सबटाइटल्स कर देखेंगे तो आप लिसनिंग से रीडिंग पहुंच जाओगे और पढ़ना स्टार्ट कर दोगे. वो नहीं करना है. हमें अभी लिसनिंग प्रैक्टिस करनी है. नो रियल लिसनिंग प्रैक्टिस एक्चुअली हैपेंस. यू मिस ऑल टोन, रिदम एंड स्ट्रेस क्यूज. सो आपको स्ट्रेस, रिदम और टोन तभी समझ में आएगा जब आप लिसनिंग करेंगे, रीडिंग नहीं. द 3-step मेथड. 3-step मेथड बता रहे, बहुत ईजी है. फर्स्ट स्टेप, वॉच विथ नो सबटाइटल्स फर्स्ट. विदाउट सबटाइटल्स देखना है तो बहुत आसान चीज है. रीवॉच विथ इंग्लिश सबटाइटल्स. रीवॉच विथ इंग्लिश सबटाइटल्स. पहले हमने क्या किया? हमने बिना सबटाइटल्स देखा. फिर हमने क्या किया? फिर हमने सबटाइटल्स ऑन किए, फिर वो वीडियो रिवाइंड किया और फिर प्ले किया. स्टेप 3, वॉच वंस मोर विदाउट सबटाइटल्स. तो आपको पहले बिना सबटाइटल्स के देखना है, फिर सबटाइटल्स के साथ, फिर बिना सबटाइटल्स के. योर ईयर ट्रेन्स प्रोग्रेसिवली ईच टाइम. तो जब आप ये 3 बार देख लेंगे ऑलमोस्ट हर इंग्लिश वीडियो तो बहुत आसान हो जाएगा. फिर लिसनिंग तो चुटकी भर का काम रह जाएगा. नाउ बिल्ड योर लिसनिंग वोकैबुलरी. सम वर्ड्स यू रिकॉग्नाइज व्हेन रीडिंग बट कैन नॉट आइडेंटिफाई व्हेन हर्ड. सो ऐसे वर्ड्स आपको प्रैक्टिस करने हैं जो लिसनिंग के वक्त आपको समझ नहीं आते लेकिन रीडिंग में समझ आ जाते हैं. दिस गैप इज कॉल्ड योर रीडिंग वर्सेस लिसनिंग वोकैबुलरी गैप. सो रीडिंग वर्सेस लिसनिंग वोकैबुलरी गैप पे भी हम एक नेक्स्ट अलग वीडियो बनाएंगे जिसपे हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है रीडिंग वर्सेस लिसनिंग का गैप. ओके. Fix it. Use Audible or YouTube and read the transcript while listening. Your brain connects the sound of each word to its written form. ठीक है, तो आपका जो ब्रेन है वो एक एक साउंड को रिटन फॉर्म से कनेक्ट करता है. रिटन फॉर्म से अगर मैं प्रोग्रेसिवली बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि वो रीडिंग में भी आपको समझ में आता है. तो वैसे ही धीरे धीरे ट्रेन करना है. प्रोग्रेसिवली बहुत आसान वर्ड है. ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे खतरनाक वर्ड होते हैं. रेगुलरली रिव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स और पॉडकास्ट एंड वीडियोस आफ्टर लिसनिंग. ओके. प्रैक्टिस लिसनिंग एट डिफरेंट स्पीचेस. प्रैक्टिस लिसनिंग एट डिफरेंट स्पीचेस. स्टार्ट विद स्लो क्लियर कंटेंट. बीबीसी लर्निंग इंग्लिश, टेड या इंग्लिश क्लास 101. ऐसे बहुत सारे चैनल है. हमारा चैनल भी है जहां यू कैन प्रैक्टिस लिसनिंग एट डिफरेंट स्पीचेस. ठीक है, नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को आप देख सकते हैं. ग्रेजुअली मूव टू फास्टर नेचुरल कंटेंट, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, टीवी शोज. ठीक है, आपको धीरे धीरे पॉडकास्ट, टीवी शोज, न्यूज एंड इंटरव्यूज इन सब में फोकस करना है. क्यों करना है? क्योंकि अब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो चुके हैं. अब यूज यूट्यूब स्पीड कंट्रोल्स. यूट्यूब स्पीड कंट्रोल्स, इसमें क्या करना है? बिगिन एट 0.75x. ये तो पता है ना स्पीड कंट्रोल्स क्या होता है. आप थोड़ा सा बढ़ा रहे हो. ठीक है. वर्क योर वे अप टू 1.25. बहुत आगे है. तो आपको बस इस स्पीड में सुनना है. क्यों सुनना है? क्योंकि अब जब आप स्पीड में सुनेंगे और आपको समझ में आने लगेगा तो स्लो सुनना तो हलवा रह जाएगा. राइट. This trains your ear to handle the full range of natural spoken English. Long-term goal, 1.0x speed feels easy and feels very comfortable. Long term. Now section 5, last section है हमारा. Daily practice habits. अब हम
कंसिस्टेंसी बताने वाले, क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी चीज अदर देन इंग्लिश भी बात करो, कोई भी काम करने के लिए कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि कल सुबह उठना है और परसों आप नहीं उठे, ठीक है, कल उठ गए लेकिन परसों नहीं उठे, तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। वही चाहिए। तो लिसनिंग प्रैक्टिस में भी डेली करना है, कंसिस्टेंसी चाहिए। प्रैक्टिस शेडोइंग क्या? शेडोइंग, रिपीट इमीडिएटली आफ्टर द स्पीकर मिमिकिंग देयर रिदम एंड टोन। मतलब आपको ब्लेंड करनी है अपनी आवाज स्पीकर के साथ। वो जैसे ही कुछ बोल रहा है आपको भी उसके साथ बोलना है। क्या होता है कि आपको सुनना पड़ता है उस चीज के लिए। स्टेप 1, पिक अ शॉर्ट 30 to 60 second clip and listen all the way through. Step 2, listen again and repeat right after each sentence, copy the sound. तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसे गाना सुनते हैं, गाने के साथ जैसे हम ब्लेंड इन करते हैं वैसे ही करना है। आपको पहले स्पीकर को सुनना है, स्पीकर को सुनने के बाद आपको एक बार और देखना है 30 to 60 सेकंड की वीडियो को, एंड आपको फिर उसके साथ रिपीट करना है। यू नीड टू रिपीट विद हिम। एंड द थर्ड थिंग, ओवर टाइम ट्राई टू स्पीक साइमल्टेनियसली विद द स्पीकर। सो ओवर टाइम आप गाना सुन रहे हो, पहले दिन समझ नहीं आ, बस सुनते हो, ठीक है, अच्छा लग रहा है, सुन रहे हो। दूसरे दिन थोड़ा सा कॉपी कर रहे हो, तीसरे दिन आप साइमल्टेनियसली उसके साथ लिपसिंग कर रहे हो। दिस पावर टेक्निक ट्रेन्स योर ईयर एंड योर स्पीकिंग एट द सेम टाइम। सो आपका एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं। कैसे? आपकी इस टिप से, इस डेली हैबिट से, इस प्रैक्टिस शेडोइंग से क्या हो रहा है? आप स्पीकिंग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप लिसनिंग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ट्रेन्स योर ईयर्स एंड योर स्पीकिंग। तो आप लिसनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पीकिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कीप अ लिसनिंग जर्नल। आफ्टर एवरी लिसनिंग सेशन टेक 2 to 3 minutes टू राइट अ क्विक रिव्यू। तो आपको जैसे आपने 2 से 3 मिनट जैसे आपने सुना, आपको 2 से 3 मिनट में आपको उस वीडियो का रिव्यू लिखना है। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड वेल? क्या आपको समझ में आया, अच्छे से समझ में आया? व्हाट कंफ्यूज यू एंड व्हाई? क्या कंफ्यूज किया है? रिकॉर्ड एनी न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस यू हर्ड। ओके, नोट प्रोनाउंसिएशन पैटर्न्स एंड कनेक्टेड स्पीच यू नोटिस्ड। रिव्यू योर जर्नल वीकली, यू विल क्लियरली सी योर प्रोग्रेस ग्रोइंग। धीरे धीरे प्रोग्रेस आएगी, जल्दी नहीं आएगी। जैसा कि हमने बताया, कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिसन एवरी डे इवन 15 मिनट्स। तो आपको 15 मिनट भी सुनना है, 10 मिनट भी सुनना है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ज्यादा देर तक सुनना, आधा घंटे तक सुनना, 1 घंटे हो, नहीं, 10 मिनट भी सुन लो। 24 घंटे में 10 मिनट नहीं सुन पा रहे तो क्या जी रहे हो? तो आपको बस 10 मिनट फोकस करना है। 10 मिनट फोकस करना है। क्या? हर रोज क्या करना है? वही, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। 15 मिनट डेली बीट्स 2 hours once a week। 15 minutes डेली बीट्स 2 hours once a week। तो हफ्ते में अगर आप 2 घंटे का प्रैक्टिस कर रहे हो और हफ्ते में हर दिन आप अगर 15 मिनट की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 15 मिनट 2 घंटे वो बीट कर देगा। तो 15 मिनट लगाएंगे ना, 2 घंटे कौन पिसेगा? मेक इट अ डेली रूटीन, मॉर्निंग, कम्यूट, लंच टाइम एंड और बिफोर बेड। आप कभी भी कर सकते हैं, लंच टाइम, मॉर्निंग, बिफोर बेड। टॉप डेली लिसनिंग रिसोर्सेज, 6 minute इंग्लिश, स्टफ यू शुड नो, इंग्लिश विद BBC पॉडकास्ट है, टेड टॉक्स है, बहुत सारे हैं। हमारे पास भी आप आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी स्टोरीज बनाई है आपके लिए। वो लिसन करेंगे, समझेंगे। बेसिक बच्चों वाली स्टोरीज है, तो आप उसको आराम से पढ़ पाएंगे, आप इसको समझ पाएंगे। एंड स्लोली हम थोड़े इंटरमीडिएट फिर एडवांस पे जाएंगे, जहां हम एक्सट्रीम वर्ड्स बताएंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं लास्ट टिप पे। लास्ट टिप क्या है? रिव्यू एंड रिपीट द सेम कंटेंट। रिव्यू एंड रिपीट द सेम कंटेंट। रिपीटेशन इज की। द सेम क्लिप साउंड्स डिफरेंट ईच टाइम यू लिसन। तो जब भी आप एक क्लिप को बार बार देखते हैं, आप कभी एक बार ट्राई कीजिए, आप भी जाके ट्राई कीजिएगा इस वीडियो के बाद, कि आपको एक क्लिप देखनी है, क्लिप देखने के बाद उसको रिपीट करना है। रिपीट करने में अलग लगेगा, वो पहले अलग लगेगा, दूसरी बार थोड़ा और अलग लगेगा, तीसरी बार लगेगा सुना हुआ है, चौथी बार लगेगा मैं बोल सकता हूँ इसके जैसा। ऐसे ही करना है। फर्स्ट लिसन, कैच द ओवरऑल गिस्ट। व्हाट इज इट जनरली अबाउट? जनरली क्या है? सेकंड, लिसन, नोटिस मोर डिटेल्स, टोन, स्ट्रक्चर एंड इमोशन। नोटिस थोड़े टोन, रिदम, डिटेल्स, स्ट्रक्चर, वॉइस मॉड्यूलेशन, ये सब नोटिस करना है। फिर थर्ड क्या है? पिक अप इंडिविजुअल वर्ड्स एंड फ्रेजेस यू मिस्ड बिफोर। तो आपको क्या करना है? इंडिविजुअल फ्रेजेस, इंडिविजुअल वर्ड्स, इंडिविजुअल कंटेंट, ये सब आपको खींचना है। किसमें? दिमाग में। क्यों दिमाग में खींचना है? क्योंकि आप ये सब अभी थोड़ा सा फर्स्ट सेकंड लिसनिंग में थोड़ा खराब हो गया था, तो हम थर्ड लिसनिंग में कंप्लीट कर देते हैं। दिस इज एग्जैक्टली हाउ योर ब्रेन बिल्ड्स डीप लास्टिंग लिसनिंग फ्लुएंसी। ठीक है, तो आपको डीप लास्टिंग करना है। नाउ योर लिसनिंग सक्सेस फॉर्मूला, की टेकअवेज, ऑल 5 सेक्शंस। पहला क्या था? माइंडसेट। माइंडसेट में हमने क्या क्या बताया था कि आपको कैसा माइंडसेट रखना है बिफोर गोइंग टू स्पीक विद अ नेटिव स्पीकर और बिफोर लिसनिंग टू द नेटिव स्पीकर।
क्या माइंडसेट रखना है। फिर नेचुरल इंग्लिश सेकंड सेक्शन में, फिर एक्टिव लिसनिंग बताई थी हमने, एक्टिव लिसनिंग क्या करें, फिर टूल्स एंड रिसोर्सेज एंड लास्ट डेली हैबिट्स। डेली हैबिट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सबको ऑल टुगेदर उसके साथ मर्ज करते हैं तो फिर आप एक बहुत अच्छे लिसनर बन जाएंगे, बहुत अच्छे। ठीक है, तो हमने आपको सब बता दिया लिसनिंग टिप्स के बारे में। आपको सुनते रहना है हर रोज, और हर रोज सुनने की वजह से आपकी प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी और आप बहुत अच्छे लिसनर बन जाएंगे। तो हम मिलेंगे अगली टिप्स की वीडियो में, अगले अलग स्पोकन इंग्लिश के वीडियो में मिल सकते हैं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जहां भी मिलेंगे। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि उनको भी लिसनिंग करवानी है। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और ये मत भूलिएगा कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको हर रोज सुनना है 15 मिनट। जैसा मैंने बताया, अगर आप एक दिन, हफ्ते में एक दिन 2 घंटे सुन रहे हैं और हफ्ते में हर रोज 15-15 मिनट सुन रहे हैं, तो 15 मिनट 2 घंटे को, तो 2 घंटे पिसना किसको मजा आता है, किसको 2 घंटे पढ़ना मजा आता है, 1 घंटे नहीं बैठ पाते हम। तो इसलिए 15 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी 1 महीने में 30 डेज में आपका इंग्लिश लिसनिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्कार।